Yes. Good evening, everyone. मुझे सुन पा? Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, Good evening, sir. what were we doing in the last class? Good evening, everyone. What were we doing in the last class? Let me first share the PPT. Yes, the PPT visual in full mode. Yes, sir. Okay. So, what were we doing in the last class? सर हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम का हम क्वेश्चन कर रहे थे. Yes. We were doing we have done the solution by considering the fin into two elements. Yes, sir. Two elements. और 4 एलिमेंट्स का सोल्यूशन आपके लिए एज ए असाइनमेंट था. तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी दैट असाइनमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय प्रत्युष. 4 एलिमेंट सोल्यूशन असाइनमेंट हैज बीन रिसीव्ड by one student only, that is Pratyush. Others please submit it soon, within 1 or 2 days. Submit it. Okay, sir. कल कर देंगे. Submit it. So in this class we are taking a new topic. So we are taking a new topic. So the new topic is inclined bar. The new topic is inclined bar. A bar which is inclined by horizontal by some angle theta. So AB is the bar. So what will be the stiffness matrix for this bar? Stiffness matrix for this bar. ठीक है. इससे पहले हमने एक जनरल क्वेश्चन पढ़ा था. सपोज AB is a bar which is horizontal, that means theta equal to 0 in this case. So stiffness matrix we have calculated 1 minus 1 minus 1 and 1. This was the stiffness matrix that we have calculated in the earlier classes. But now the bar is inclined. Now our focus is on inclined bar. So what will be the stiffness matrix? Okay, so I'm writing the stiffness matrix over here directly without any derivation. We will do the derivation in any other class. So this derivation is basically, I'm writing the just formula, or I can explain something before that. So here the direction is x and this direction is y. X and y. Here also the directions are x and y. X and y. These are the two directions. And global direction and local directions. I am discussing about the global directions and local directions. So for this point, the axis is going over here, that is x dash, and a perpendicular axis over here, that is y dash. So for this particular bar, x dash and y dash are the local directions. X dash and y dash are the local axis, or you can say it is the local direction. And x and y are the global direction. Global direction. In this particular case, when theta equal to 0, the local and global are both same. Local and global are both same. So this is the theta. Due to this theta, the stiffness matrix changes. Here the stiffness matrix size is 2 by 2. But due to this theta, the size is changing and the final size is 4 by 4. ये हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा explanation. This is the bar. Let the node 1 and node 2. For this particular node, you can say this is x dash
and this is y dash. And the global directions are x and y. So that this is x and this is y. This is y direction. The bar is making angle theta with this. At this node 2 and node 1, let the local displacement is u2. Local displacement is u1. Global displacement in horizontal direction is u1. Vertical displacement is v1. Similarly, for node 2, the global displacements are u2 and v2 respectively. Okay. The local displacements are u1 dash and v1 dash, and u2 dash and v2 dash. Okay. So local displacements are u2 dash, v2 dash, u1 dash, v1 dash, and u1, v1, u2, v2 are the global displacements. We want to establish a relationship between u1, v1, u2, v2, which is a global displacement vector, and u1 dash, v1 dash, u2 dash, v2 dash, a local displacement vector. So how can we make this relationship? Anyone? बताइए कैसे बना सकते हैं? So the horizontal displacement is u2, the vertical displacement is v2. This is angle theta. Okay. This is u2 dash. This is v2 dash. If this angle is theta, then this is also theta. Okay. This is also theta. Right? So u2 dash can be written as u2 cos theta plus v2 sin theta. लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ? देखो u2 का कंपोनेंट u2 डैश की डायरेक्शन में क्या होगा? u2 cos थीटा, और v2 का कंपोनेंट u2 डैश की डायरेक्शन में क्या होगा? v2 sin थीटा, क्योंकि v2 के दो कंपोनेंट होंगे, v2 cos थीटा v2 डैश डायरेक्शन में और v2 sin थीटा u2 डैश डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो कंपोनेंट आप ऐड कर दो जो u2 डैश डायरेक्शन में है. u2 का u2 cos थीटा है और v2 का v2 sin थीटा है. So this is my equation number 1. Similarly, I can write v2 dash. अब v2 dash का देखो, v2 dash के डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो, है ना? तो कंपोनेंट कैसे कर सकते हैं? देखो u2 के कंपोनेंट देखें, v2 का कंपोनेंट v2 डैश डायरेक्शन में क्या होगा? v2 cos थीटा. तो एक तो v2 cos थीटा टर्म आएगा, और u2 का कंपोनेंट इधर होगा u2 cos थीटा, u2 sin थीटा, लेकिन हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, सो इट इज माइनस u2 sin थीटा. ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, u2 के कंपोनेंट इधर होगा u2 cos थीटा, इधर होगा u2 sin थीटा, बट वी रिक्वायर डायरेक्शन v2 dash, so u2 sin theta will be minus u2 sin theta. So that's why we have written minus u2 sin theta. So when we write these in the matrix form, so u2 dash v2 dash will be equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, a matrix multiplied by a vector u2 v2. ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बताओ? So this is the relationship between u2 dash, v2 dash and u2 v2, है ना? So cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Sometimes this matrix is also written as C S minus S C.
इसको ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, C for cos theta, S for sin theta, S for sin theta, C for cos theta. So this and this are same. बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, some authors write in this way. Correct? एक बार और देखिए. Suppose this is inclined bar 1 and 2, making angle theta. This is your x direction. This is your y direction. ठीक है. For this point, the local displacement is u2 dash. है ना, xl direction of the bar. The vertical displacement is v2 dash. मुझे सुन पा रहे हैं ना? Yes, sir. Okay. So vertical displacement is u2 dash. है ना? The global displacements are u2 and v2. So this is u2 and this is v2. This is v2. See in this way. So this is v2. Sorry. This is v2. So this angle is theta. है ना? This angle is theta. That's why this angle is also theta by geometry. अब आप ये देखिए कि u2 को क्या लिख सकते हैं. u2 can be written as the component of u2 dash in this direction is u2 dash cos theta. अब उल्टा कर रहे हैं हम, u2 dash का कंपोनेंट u2 की डायरेक्शन में ले रहे हैं. ठीक है. v2 dash का कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos theta इधर और हॉरिजॉन्टल में v2 sin theta, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है u2 का. So that's why it will be minus. So it is minus v2 dash sin theta. This is equation number 3. Similarly, v2 can be written as, अब हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं, तो u2 dash का कंपोनेंट क्या होगा, u2 dash sin theta, और v2 dash का कंपोनेंट क्या होगा, v2 dash cos theta. So it is v2 dash cos theta. So this is equation number 4. When written in the matrix form, so u2 v2 can be written as cos theta minus sin theta and cos theta. So this is my equation number B. So this gives me, and one vector also there, u2 dash v2 dash. So this gives the relationship between u2 v2 and u2 dash v2 dash. और पहले वाली जो थी वो u2 dash v2 dash लेफ्ट हैंड साइड था, इसमें u2 dash v2 dash राइट हैंड साइड है. तो मैट्रिक्स में क्या फर्क आ रहा है, देखो cos पहले में था, रो पहली रो प्लस पॉजिटिव थी, दूसरी रो का थर्ड टर्म नेगेटिव था, है ना, बाकी सब पॉजिटिव है. और इसमें क्या हुआ, सेकंड टर्म नेगेटिव हो गया, है ना. ध्यान रखना साइन की वजह से कभी मिस्टेक्स ना हो. तो जब ग्लोबल को लोकल से रिलेट करोगे तो सेकंड टर्म नेगेटिव आएगा, और लोकल को ग्लोबल से करोगे तो थर्ड टर्म नेगेटिव आएगा. ठीक है. इनवर्स करके भी देखोगे तो ये इनवर्स में इसी तरह हो जाएगा, है ना. एक तरह से ये इनवर्स ही तो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं. दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, है ना, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो वहां से भी आप इसको टैली कर सकते हैं. ये हमने रिलेशनशिप निकाल लिया u2 v2 का. ठीक है, u2 v2 का रिलेशनशिप हमने निकाल लिया. तो जिस तरह से हमने u2 v2 का रिलेशनशिप निकाला है, उसी तरह से u1 v1 का भी तो रिलेशनशिप निकल जाएगा ना पॉइंट नोड 1 पर. ये जो नोड 1 है, यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट ग्लोबल डायरेक्शन में क्या होगा, u1, ये भी ग्लोबल है तो ये v1, इधर हो जाएगा u1 डैश और इधर हो जाएगा v1 डैश. तो सेम लॉजिक कैन बी इंप्लीमेंटेड एट दिस नोड आल्सो. सो आई कैन राइट इट ओवर हियर. जैसे मैंने यहाँ u2 डैश v2 डैश निकाला था, तो इन द सिमिलर फैशन in the
similar fashion, I can also write at node 1 u1 dash v1 dash must be equal to, है ना, सेम मैट्रिक्स आएगी cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड द वेक्टर u1 v1, ऐसी इक्वेशन आएगी. तो लेट दिस इक्वेशन इज curve and this equation is curve. Can you combine both the equations, curve and curve? तो कंबाइन होने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी जरा बताओ. दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या इक्वेशन बनेगी? एनीवन? दोनों को कंबाइन कर, तो देखो कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? u1 डैश v1 डैश u2 डैश v2 डैश, ये कंबाइंड हो जाएंगे. u1 डैश v1 डैश u2 डैश v2 डैश, ये कंबाइंड हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं इसको जरा कंबाइंड कर देता हूँ. यहाँ की मैं क्लियर कर दूं पहले. यहाँ मैं इसको कंबाइंड कर देता हूँ, है ना. कंबाइंड इक्वेशन, दिस विल बी, कंबाइंड इक्वेशन विल बी u1 डैश v1 डैश u2 dash v2 dash इक्वल टू ए मैट्रिक्स. फाइंड करोगे, देखो ये जो मैट्रिक्स, ये जो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, है ना, ये मैट्रिक्स आएगी. उसको मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया. cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ये मैंने बंद कर दिया. और यहां पर मेरी वेक्टर कौन सी आ जाएगी बताइए? इधर आ जाएगी वेक्टर. देखो इधर क्या है, u1 v1 है एक, u डैश और u1 v1 है और u2 v2 है, यही तो है. तो इसको हम कंबाइंड लिख देते हैं, u1 v1 u2 v2. ठीक है, तो देखो u1 डैश के साथ में u1 और v1 के कोफिशिएंट हैं, u2 v2 के तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो दे विल बी जीरो. दे विल बी जीरो. मैट्रिक्स में लिख रहा हूं कंबाइन करके, ध्यान से देखना. इधर u1 v1 के तो कोफिशिएंट हैं, लेकिन u1 डैश v1 डैश के साथ u2 v2 का कोफिशिएंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो. ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो u2 डैश v2 डैश के साथ u1 v1 के कोफिशिएंट नहीं है, दैट्स व्हाई दे विल बी जीरो. देन दिस विल बी cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यस सर. आगे ना कंबाइन कर दिया दोनों को, है ना. कंबाइन करने के बाद में अब ये इक्वेशन रिलेट कर रही है लोकल डिस्प्लेसमेंट्स को ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट से, है ना. ये चार जो है ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट है, ये चार लोकल. तो ये एक्चुअली हमने क्या किया है, ये सब चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, में पढ़ी होंगी आपने ट्रांसफॉर्म. ये इंक्लाइंड बार जो है वो बेसिकली क्या है, थीटा से ट्रांसफॉर्मेशन है. हॉरिजॉन्टल बार का एंगल थीटा से ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी वजह से इसमें थीटा के टर्म्स आ रहे हैं, है ना. तो फिर इसका एक डेरिवेशन होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स का, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं. एक आइडिया दिया है मैंने कि थीटा की वजह से मैट्रिक्स चेंज होती है. तो आप ये देख पाएंगे कि जो मैट्रिक्स पहले 2x2 थी, अब वो मैट्रिक्स 4x4 में चेंज हो गई. तो जो फाइनल मैट्रिक्स होती है वो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके बेस पर. सो फाइनल स्टिफनेस मैट्रिक्स, सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं मैं. फाइनल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर इंक्लाइंड बार. इंक्लाइंड बार इज गिवन बाय, इसको याद रखना है, मेमोराइज करना है, सी स्क्वायर सी एस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस. इसको नोट कर लेना. ठीक है, सी स्क्वायर सी एस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस. और ये सिमेट्रिक होता है मैट्रिक्स,
तो जो पहली रो होती है वही पहला कॉलम भी होता है। तो ये सी स्क्वायर सी एस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस, जो पहली रो होती है वही पहला कॉलम भी होता है, ठीक है। उसके बाद सी स्क्वायर एस स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये डायगोनल टर्म्स होते हैं। सी स्क्वायर एस स्क्वायर सी स्क्वायर, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ थोड़ा, है ना, इजीली याद हो जाएगा। सी स्क्वायर एस स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर, तो जो सेकंड रो होती है वही सेकंड कॉलम भी होता है। तो माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर, जो बचा हुआ पार्ट है वो सी एस, तो फिर ये भी सी एस, ठीक है। तो ये 4x4 की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे सी स्क्वायर का क्या मतलब है? सी स्क्वायर का मतलब है कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि मेरी कोई इंक्लाइंड बार 30 डिग्री एंगल पर है तो मेरे लिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 30 यानी कि √3/2। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 30 यानी कि हाफ। तो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी एस मतलब सी इंटू एस, ये हो जाएगी √3/2 इंटू 1/2 मीन्स √3/4, ठीक है। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो इसको जरा सा लिख दो, आप वैल्यूज बताओ, तो थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। मान लो कोई बार 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इस बार के लिए ये स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगी? तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू √3/2 है, सो इट इज 3/4। सी इंटू एस √3/2 इंटू 1/2, सो इट इज √3/4। माइनस सी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? -3/4। माइनस सी एस तो -√3/4, ठीक है। पहली रो समझ में आ गई, राइट। और देखो डायगोनल के ऊपर का जो हिस्सा है, डायगोनल के ऊपर का जो पार्ट है, यदि हमें ये पार्ट पूरा पता है तो नीचे का पार्ट अपने आप लिखा जा सकता है बाय सिमेट्री, है ना। तो कई ऑथर्स क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख देते हैं। दे राइट इन दिस वे, सी स्क्वायर सी एस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस, ठीक है। उसके बाद वो लिख देते हैं एस स्क्वायर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर, फिर वो लिख देते हैं सी स्क्वायर सी एस, और फिर लिख देते हैं एस स्क्वायर, ठीक है। अब ये डायगोनल लिख दिया और डायगोनल के अपर पार्ट को लिख दिया। लोअर पार्ट के लिए वो सिंपली SYM कर देते हैं, बस सिमेट्री। तो उस लोअर पार्ट को जनरली दे डोंट राइट इन दी कैलकुलेशंस इन दी डिफरेंट लाइंस, ना, समय बचा लेते हैं अपना। तो एग्जाम में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, यू कैन राइट सिम फॉर द सिमेट्री, ठीक है। तो मुझे अब इसको सिमेट्री फॉर्म में जरा लिख के बताओगे? पहली लाइन तो मैंने लिख दी, अब ये कितना आएगा? एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बताओ लवकेश, व्हाट विल बी एस स्क्वायर? 1/4। यस, अगली वैल्यू बताओ। माइनस सी एस ऑलरेडी निकाल, -CS। हाँ, यस सर, -CS ऑलरेडी निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं सर। हाँ, तो माइनस -√3/4 और माइनस एस स्क्वायर -1/4 हो जाएगा, -1/4। निकाल चुके हैं तो माइनस लग जाएगा इसमें। अब इसी तरह सी स्क्वायर एस स्क्वायर और सी एस सब निकल चुका है, बस वैल्यू बता दो क्या लिखें। यहाँ पे क्या लिखें? 3/4 3/4, और यहाँ पे क्या लिखें? 1/4, और 1/4। यहाँ पे लिखें √3/4, बस। और बाकी क्या लिख दें? सिमेट्री, बस हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स बनाने होंगे आपको न्यूमेरिकल के दौरान, ठीक है। एक एग्जांपल है, मतलब जस्ट यदि एंगल पता है, then we can write the stiffness matrix by using this formula, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखना बड़ा आसान है। जो डायगोनल टर्म होते हैं वो सी स्क्वायर एस स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर होते हैं, और अपने किसी भी तरीके से आप इसे याद रख लें, थोड़ा 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सी स्क्वायर सी एस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस ना, ये पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, ये नेगेटिव टर्म्स होते हैं। देखो ये भी पॉजिटिव है सी एस एस स्क्वायर, तो ये नेगेटिव है माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर, है ना। ये माइनस में है तो फिर ये पॉजिटिव हो गए, ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो गए। पहले दो टर्म जो यदि पता है
तो अगले दो टर्म उनके नेगेटिव होते हैं। किसी भी लाइन में देख लो, पहले दो टर्म यदि आपको पता है तो अगले दो टर्म उनके नेगेटिव होते हैं, याद रखना आसान। ठीक है, तो जरा एक बार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, बिना देखे बोलो जरा, कौन बोलेगा? बोलिए चौहान, क्लास में नहीं है सर। चलिए आप बताइए एक बार, जस्ट प्रैक्टिस कैसे करें। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सी आप स्क्वायर, बोलिए। हाँ सी एस, सी एस। बस इनका माइनस कर दो, माइनस सी। सर माइनस सी स्क्वायर और सी एस। ठीक है, उसके बाद में सी एस सी एस, एस एस इनका माइनस कर दो, माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आएंगे दोनों। यस सर, स्टार्टिंग में सी एस और माइनस एस। यहाँ माइनस आएंगे तो क्या क्या आएंगे माइनस में? माइनस सी एस ये दोनों ही तो सी आएंगे, स्क्वायर पहली रो पहला कॉलम सेम होता है पहला है ना। तो माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस सी एस हो जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के बाद यहाँ क्या माइनस सी एस आएगा, माइनस सी एस और यहाँ पे सी स्क्वायर और सी ये स्क्वायर। सी एस हो जाएगा। यस, माइनस सी एस के बाद ये एस कितना हो जाएगा? माइनस एस स्क्वायर, माइनस एस माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एस और ये हो जाएगा। यस। ये लॉजिक थोड़ा अच्छा है कि पहले दो टर्म का नेगेटिव करोगे तो दूसरा टर्म, अगले दो टर्म आ जाएंगे किसी भी लाइन के। क्लियर? सर हाँ सर अगर हम इसको बीच में से मतलब लाइन खींच दें और मतलब चार चार पार्ट में डिवाइड कर दें, तब भी तो हाँ। वही हो जाएगा पहले वाले, मतलब जैसे अगर आपने बीच से सी एस हाँ ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे चार पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं। हाँ तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल एक ही है, सेम है। और उसमें माइनस माइनस लग गया है बस। और उनमें उनमें केवल क्या लग गया? माइनस माइनस लग गया। माइनस। ये भी बहुत आसान तरीका है ना। बस आप एक याद कर लो, सी स्क्वायर सी एस एस स्क्वायर, ये आसान। ये याद कर लो तो इसका नेगेटिव ये हो गया, और ये जो सिमेट्री है ये यहाँ उठ के आ गया, इसका नेगेटिव सेम है ना। गुड, तो याद रहे एग्जाम में, अब तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। तो एक न्यूमेरिकल लिखिए जरा है, फॉर द फॉलोइंग टाइप। कितना टाइम क्या हो रहा है अभी? सब 4 बजने में 5 मिनट है। 4 बजने में 5 मिनट, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अभी इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके सर। 5 या 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन होते हैं और उसमें हम एक न्यूमेरिकल फिनिश करेंगे इसका पूरा, है ना। ओके सर। इंक्लाइन बार का एक न्यूमेरिकल है अच्छा सा, उसको फिनिश करें। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।